You people want to start right now or in a few minutes? Ma'am, everyone is coming. Okay. Maximum volume. Guys, let me know once you're ready. Hi, Samarth. Good evening. Samarth, are you there? Good evening, ma'am. Good Hmm. evening. We are going to start in a couple of minutes once the other students are ready. Okay. Do you have the textbook or do you have the PDF? Let me know. I do have the textbook. You have the textbook. Okay. So we are going to do reading comprehension today. Okay, fine, fine. I'll Yeah. take it out. Yeah. Ma'am, is there a specific page number in the textbook or will you show the PDF? In the textbook, it's chapter number 16, 129 page. Okay, fine. Yeah. So this chapter had already been started yesterday, I mean in the previous class. So we are going to move forward with the rest of the exercises and the other passages. So before I start with that, and there's a time in starting the class, so you just go through the content which is given before the exercise. It'll be easier for you to solve. Okay, ma'am. Go through the tones of the passage, go through the types of passages. These are the two main things that you need to take care of. Okay.
Also, while reading, keep annotating, make notes, underline, mark the important things that you feel like. Okay. Ma'am, we are ready. Okay. All right. Before starting reading comprehension, we are going to discuss the homework I gave you to finish statement assumptions. Did you do that? Ma'am, Yes. ma'am, the homework was analogies exercise 2 and 3. Yeah, and after that, I also mentioned that you have to finish this assumptions thing. I asked you people said yes, that we'll do it. Didn't you? No, ma'am. What no? You people agreed. I asked you people. Why didn't you do it? Ma'am, we did not have enough time. See, that's one of the reasons that you are giving me. But when I asked the previous day in the class, you people agreed. कि हाँ ma'am, we'll do it. Okay. डू वन थिंग, पहले वो खत्म करो, बिकॉज वो 2 क्लास पहले का एक टॉपिक है. वी आर नॉट गोइंग टू स्ट्रेच इट फॉर सो लॉन्ग. 10 मिनट में वो खत्म करो फटाफट. देन वी स्टार्ट विद आरसी एंड द होमवर्क डिस्कशन ऑफ एनालॉजी. ओके, जल्दी करो. Are you people solving assumptions? Yes. Okay.
Meanwhile, Samarth, while you are reading, if you incur any doubt, you can ask me. Okay. Okay, ma'am. एवीएम स्टूडेंट्स, तुम लोग की क्राइस्ट की एग्जाम कब है? 7 को. 7 दिसंबर. Yes. Yes. ठीक है. Are you people giving mocks? Yes, ma'am. ठीक है. Which question are you people on? 17. ठीक है, जल्दी करो. Done? Yes, ma'am. चलो. 7th one. Science is a sort of news agency comparable in principle to other news agencies. But this news agency gives us information which is reliable to an extraordinary high degree due to elaborate techniques of verification and its capacity to survive centuries. So science should be read with as much interest as we read news. तो इस पूरे स्टेटमेंट में जो लास्ट सेंटेंस है, so science should be read with as much interest as we read news, ये क्या है? कंक्लूजन? यस. Yes. और इस स्टेटमेंट के बेस पे व्हाट इज द करेक्ट अजम्पशन दैट वी कैन मेक? पीपल रीड न्यूज आउट ऑफ इंटरेस्ट या फिर साइंस एनकरेजेस इन्वेस्टिगेटिव स्पिरिट? Both. Both. बोथ. Yes. Yes.
ओके, सी बोथ। एट, क्या चूज किया? एट, करेक्ट। एन एडवर्टाइजमेंट, नाइन्थ वाले में क्या? ए। टेंथ, सी बोथ। 11, सी। A. We must be prepared to face any uncertainty, and all the assignments must be completed as per their scheduled time. Scheduled time, project coordinator tells the members. Okay. There is a possibility of serious uncertainty. We must be prepared to face any uncertainty. Okay. Dates and time are fixed for all the assignments. It will be A, not C. ठीक है? 12th. A. 13. 13. C. 14. A. 15. A. 16. A. 17. D. Delhi. None. Neither. 18. B के D. Bombay. Correct. 19. हाँ, Delhi. 20. Delhi. ठीक है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, चलो आरसी। आरसी में मैंने होमवर्क कौन कौन सा दिया था? याद है कि नहीं? एक्सरसाइज 1 का हमने पैसेज 1 एंड 2 कंप्लीट कर दिया था। 3, 4, 5 आई सेड दैट वील डू इन द क्लास। उसके अलावा आरसी में से कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने? नहीं दिया था। ठीक है, सो ओपन पेज नंबर 144, एक्सरसाइज 2, पैसेज 1, 2, 3, 4, चारों ही छोटे छोटे एक ही पैराग्राफ के पैसेजेस हैं। फटाफट सॉल्व कर दो। हाउ मेनी आर देयर? 25 क्वेश्चन नहीं, 34 क्वेश्चन है इन सेकेंड। 25 क्वेश्चन है। ओके, 25 क्वेश्चन है, चार पैसेज मिला के। सॉल्व दैट वेरी क्विकली। चारों एक साथ ही सॉल्व करके डिस्कस करना है या फिर टू टू करके करना है? चारों, ठीक है। चारों फटाफट सॉल्व कर दो। आई एम पुटिंग ऑन द टाइमर। कितनी देर का लगाऊं? हाँ, 20 मिनट 20। 25 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स इज इनफ आई गेस। ओके। 20 मिनट्स, ठीक है, स्टार्ट। ओके, समर्थ, डिड यू रीड? Yes, ma'am. डू यू हैव एनी डाउट? No, I'm on the negative aspects of the paragraph. ओके, डोंट रीड वर्ड टू वर्ड। टेबल में जो दिया है बस वो रीड करके स्टार्ट ऑन विद द एक्सरसाइज सॉल्विंग। सो फर्स्ट एक्सरसाइज पैसेज 1 and 2 we had done in the previous class. 3, 4, Yeah. 5 we are still left to do. We'll do it next time. However, today we are going to start with exercise 2 passage 1, 2, 3, 4. I suggest you also start with the timer. I've given 20 minutes to solve all the 4 passages. 4 passages means the second. Exercise 2, page number 144. Okay. Fine. Passage 1, 2, 3, 4. There are 4 one paragraph के passages. ठीक है. Okay, done. Yes.
Ma'am, Yes. ma'am, I want to find out the meaning of a word. Which word? Uh, Which passage? Which question are you at? Passage number 3, question number 12. Passage number 3, question number 12. The Jump D option. start. The D option, impetuous. Impetus. Impetuous. Yeah. किसी चीज का असर. ओके, ठीक है.
हो गया? Yes, sir. ठीक है, चलो लेट्स डिस्कस। इजी था क्या? Yes, sir. बहुत इजी था, राइट? चलो, समर्थ, व्हाट अबाउट यू? डिड यू फाइंड इट इजी? Yes, ma'am. Easy. ठीक Done. है, डन। चलो, RC exercise 2 passage 1 question 1। According to the passage opera, क्या टिक किया? B. Bombay. बॉम्बे, करेक्ट। समर्थ? B, ma'am. बी, ठीक है। सेकंड, इट कैन बी inferred from the passage that C. C, correct। C, Third, ma'am. हाँ, the author has stated that C. C। Fourth, A. A। A, no, D. D। A कैसे होगा, A कैसे नहीं होगा, ये बताओ। मैम वो लास्ट लाइन में लिखा है सिंगर्स आर accompanied by म्यूजिकल ensemble. Oh, they are accompanied by it. Okay. So that collection होगा फिर. ऑल्सो द क्वेश्चन इज कॉन्ट्राडिक्ट। कौन सा वर्ड इस एंजेम्बल से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे? तो बैंड, कलेक्शन, एंटिटी, तीनों ही एंजेम्बल के मीनिंग से मेल खाते हैं। दे आर सिमिलर टू ईच अदर एंड द ओनली डिफरेंट वन इज यूनिक। Okay. ठीक है। एक्चुअली मैम मैंने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं ध्यान से पढ़ा, मुझे लगा इट इज सिनोनिम बोल रहे हैं. कॉन्ट्रडिक्ट मतलब ऑपोजिट या एंटोनिम। समटाइम्स क्वेश्चन में फारदेस्ट मीनिंग या फिर कॉन्ट्रडिक्ट करके इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो एग्जैक्ट एंटोनिम, एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड ही हो ऑप्शन में। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एलिमिनेशन मेथड भी यूज किया जाता है कि तीन ऑप्शन अगर सिमिलर वर्ड मीनिंग के हैं तो चौथा जो ऑड वन आउट है दैट इज द कॉन्ट्रडिक्टिंग ऑप्शन, या फिर दैट इज द फारदेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ओके। ओके मैम. Second passage, fifth one. Sam's attitude towards female nurses was one of Mockery. C. mockery. Yes. Sixth, alluded, Im- Implied. implied. Seventh, C. the author was unable to see. Ma'am. Yeah. Ma'am, why can't A be the answer? The author was serving the army. ऐसा कहाँ लिखा है? The author was unable to see तो directly दिया हुआ है। I think चौथी या पांचवी लाइन में जहाँ पे लिखा है ना, perhaps I could have watched his facial expressions and gestures, I might have understood or interpreted his words, but in my unseeing state I had to accept literally what I had to what I heard। मतलब वो देख नहीं सकता था, अनसीइंग स्टेट लिखा है ना, तो मतलब ही कुड ओनली रिलाई ऑन व्हाट ही कुड हियर। ठीक है। Okay, ma'am. By the way. एट्थ वन, D cannot be D. कैन नॉट बी डिड्यूस्ड, करेक्ट। ए या बी तो नहीं लग रहा, बोथ भी नहीं लग रहा। समर्थ? मैम मुझे तो समझ आ गया था कि ए नहीं होगा बिकॉज इंडो बर्मा नहीं है, इंडो चाइना वॉर है और इसमें वॉर पूछा है, तो मुझे लगा इंडो चाइना होगा बिकॉज बर्मा बॉर्डर का नाम है. हाँ, ऑल्सो उसी सेंटेंस में और समवेयर वेयर देयर कंपनी वॉज कट ऑफ, मतलब इट इज नॉट डिटरमाइंड, उसको पता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है. तो नॉट इसीलिए कैनॉट बी डिड्यूस्ड. यस। नाइन्थ, A. ए, करेक्ट। टेंथ, A.
ए पैसेज 3 11th। ये वाला पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें देर आर डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड, जिसमें तुम्हें स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, इन्फ्रेंस, सेंट्रल आइडिया, ये सब टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। ऑल्सो विच स्टेटमेंट इज स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन भी है इसमें। तो वो वाला चैप्टर हम करेंगे, ऑब्वियसली वो बाकी है करना, बट बेस्ड ऑन द पैसेज थोड़ा आइडिया आ गया होगा तुम लोग को। 11th में क्या चूज किया? A. नो, C. सी, इट शुड बी सी। समझ में आया कि ए क्यों नहीं होगा? See, question to the following is the most effective argument given by network executives in support of Japanese cartoon in US. So, जो भी argument होता है, एक second, just give me a minute now. Yes. Which question were we at? Okay. तो ये इस क्वेश्चन में इन सपोर्ट ऑफ जो भी आर्ग्यूमेंट दी होती है ना, सो यूजुअली पैसेज में दो चीजें होती है। एक तो पूरे पैसेज का टॉपिक जो होता है मेन, कि किसके बारे में बात हो रही है। दूसरी एक चीज होती है कि उस टॉपिक से अगेंस्ट या उस टॉपिक के फेवर में कोई आर्ग्यूमेंट पुट किया जाता है। यानी कि कभी कभी वो कंक्लूजन के फॉर्म में हो सकता है, या फिर कभी कभी वो स्पीकर के या ऑथर के पर्सपेक्टिव व्यू पॉइंट या ओपिनियन की तरह पे लिखा हो सकता है। तो जो आर्ग्यूमेंट होता है, इट इज यूजुअली मोस्ट प्रोबेबली द कंक्लूजन विच इज इन फेवर ऑफ या फिर इन ऑपोजिशन ऑफ द मेन स्टेटमेंट। ठीक है, जो मेन स्टेटमेंट होता है वो टॉपिक होता है, और जो आर्ग्यूमेंट होता है वो मेन आइडिया होता है या फिर पूरे पैसेज का मेन क्रक्स होता है या जिस्ट होता है। राइट, सेंट्रल आइडिया या थीम जिसको हम बोलते हैं। तो वो सेंट्रल आइडिया के जितने भी सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, वो सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा उसको फेवर कर रहा है, कौन सा वाला सबसे वीक है, कौन सा वाला अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा है, दैट वी हैव टू फिगर आउट। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला स्टेटमेंट
आर्ग्यूमेंट को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है? दैट यू हैव टू फिगर आउट. So it will be option C. These cartoons have been shown in Japan with no negative effect. ये एकदम कन्विक्शन के साथ स्टेटमेंट बोली गई है. कॉन्ट्ररी टू ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में क्या बोला है कि कार्टून वायलेंस इज इंक्रीजिंगली एक्सेप्टेड बाय द यूएस सोसाइटी. तो इसमें ये तो स्टेटमेंट है, ये उसको स्ट्रेंथन नहीं कर रहा है, वीकन नहीं कर रहा है. ये खाली एक स्टेटमेंट है. ये एक ओपिनियन बेस्ड है. तो ओपिनियन बेस्ड होता है वो उसको वीक करता है. यू कैन नॉट जस्ट पोज ओपिनियंस बेस्ड ऑन योर लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स या फिर जो इमोशनल अपील होता है. इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो आर्ग्यूमेंट को वीक करता है. हमें वीक करने वाले नहीं, स्ट्रॉन्ग या सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को ढूंढना है चारों ऑप्शन में से. समझ में आया? आया समझ में? Yeah. हाँ, समर्थ. Okay, 12th. Yes, ma'am. Okay, the term jump started in passage means. So इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन ही एक ऐसा लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है. हाउ डू यू डिसाइड कि करेक्ट आंसर क्या है? सो यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. क्वेश्चन में जंप स्टार्टेड का मीनिंग नहीं पूछा है. क्वेश्चन में पैसेज में इसका क्या मतलब है, पैसेज में किस कॉन्टेक्स्ट में किस वे में यूज किया है वो पूछा है. तो मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि वोकैबुलरी किस तरह से अलग अलग वे में पूछी जा सकती है. सिनोनिम्स अगर है तो उस वर्ड का लिटरल मीनिंग वो जो होता है वो पूछा जा सकता है, जिसका कोई कॉनोटेशन नहीं होता, जो उसका डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो वाइडेस्ट फॉर्म में यूज होता है. दूसरा जो होता है दैट इज कंटेक्सचुअल, यानी कि पैसेज में एक वर्ड का मीनिंग तो कुछ और है लेकिन उसको यूज किसी और वे में किया है. पैसेज में जिस वे में यूज किया बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जो टेक्स्ट है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो लिखा है, जो ओपिनियंस है, उसके बैकग्राउंड के बेस पे जो उसका मीनिंग निकल के आ रहा है, दैट बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ठीक है? तो यहाँ पे टू गिव राइज टू समथिंग is the correct meaning, but that's not the way it is used in the passage. Option D जो है to give an added impetus to something, यानी कि जो ऑलरेडी है उसको और ज्यादा एलिवेट करना विद मोर. इम्पेटुअस का मतलब होता है टू पुट अ लॉट ऑफ फोर्स, मतलब जिसका इफेक्ट बाद में बढ़ जाए. ठीक है? तो किसी चीज का असर बढ़ाना, टू एलिवेट समथिंग. That is the meaning of option D. समझ में आया? 13th में क्या टिक किया? B. Bombay. बॉम्बे. करेक्ट. B. हाँ. 14 Bombay. बॉम्बे. 15 B. A. A. भी A, नॉट B. A. ठीक है? 16 Bombay. B. बॉम्बे. 17 B. बॉम्बे. यस. पैसेज 4. 18 the reason children did not buy kites these days is D. Delhi. Correct. 19 B. Bombay. बॉम्बे नहीं. It will D. be D. Yes. डिसडेन का मीनिंग क्या होता है? अबैंडन तो नहीं होगा, अबैंडन तो एकदम ही अलग चीज हो गई. सो डिस्पाइज्ड, डिस्करेज्ड एंड डेरिडेड, ये तीनों वर्ड्स कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट वी हैव टू फिगर आउट कि पैसेज में डिसडेन को किस तरह यूज किया है, उसके पीछे का प्रिटेक्स्ट क्या है. तो पैसेज में डिसडेन कहाँ यूज किया है? एडल्ट्स डिसडेन्ड देम, मतलब
एडल्ट्स काइट्स को पसंद नहीं करते थे, ऐसा नहीं है, डिसलाइक तो नहीं करते थे, डिस्करेज भी नहीं करते थे, ऐसा नहीं करते थे कि काइट्स अब हमें नहीं उड़ानी चाहिए, ऐसा केस नहीं है। इट्स जस्ट अब वो बड़े हो गए हैं, उनके पास टाइम नहीं है इन सारी चीजों के लिए, इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये चीजें बचपन में पीछे छोड़ के आए हैं, एंड दे शो सेंस ऑफ कंटेम्प्ट के अब हम चाह के भी ये नहीं करते। सो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कॉनोटेशन के फॉर्म में ले गए हैं। सो इट विल बी ऑप्शन डी, डिराइडेड। ठीक है। 20। D. All of the above. हाँ, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, डी। 21, B. बॉम्बे। 22, D. D. अटैच्ड या ब्रोक ऑफ? Broke off. ब्रोक ऑफ। 23, Delhi. uh, Bombay. to try up is the correct meaning, is the correct meaning, but यहाँ पे पैसेज में पूछा है, in the passage। बी, बॉम्बे। Yes, Yes, ma'am. it's Bombay। Identify the tone of the author। C. Cynical. Narrative. Narrative. It's not cynical, it is narrative। 25, swallowed। C. C, expelled, correct। ठीक है, done। Yes, ma'am. So now we are going to solve one more passage। एक ही पैसेज और करेंगे हम, उसके बाद हम होमवर्क डिस्कस करेंगे एंड वो एनालॉजी वाला। एक कौन सा पैसेज करेंगे? पेज नंबर एक्सरसाइज 1 में जो हमारा 3 वाला बाकी था ना, 1 2 3 4 5, पर इसके तो 5 ही क्वेश्चन है। वी कैन डू 2 पैसेजेस, 3 and 4। यस। Yes. Yes. कितनी देर में? 10 मिनट में? 15. 15। चलो ठीक है, मैं 12 मिनट्स का टाइमर लगा रही हूँ, जितना जल्दी हो सके करो। ठीक है, टाइमर 12 मिनट्स। ओके। Ma'am. Ma'am. हाँ बोलो। एक्सरसाइज 1 का या 3 का? एक्सरसाइज 1, ओके। पेज नंबर 139। ठीक है। And Samarth, you can look up to the word meanings in the dictionary or from Google for now. But next time से मतलब keep a dictionary with yourself, और फोन में ऑफलाइन डिक्शनरी डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी जब तक तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तब तक तो यू कैन लुक अप टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, लेकिन जब मॉक टेस्ट के टाइम पे और जब तुम्हारा एक्चुअल एंट्रेंस होगा, तब तक यू विल हैव अ होल बैंक ऑफ वर्ड्स जो तुमने अभी तक में सर्च करके मीनिंग लिखा है, तो वो उसमें अगर whenever you encounter a new word in the passage या फिर synonym या vocabulary में, तो तब तुम्हें पता होगा उसका मीनिंग। ठीक है। ओके मैम, ठीक है मैम।
हो गया गाइस? Yes, yes. समर्थ, व्हाट अबाउट यू? चलो, विल क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग. समर्थ हो गया? हाँ मैम. चलो, पैसेज 3 एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 11. क्या टिक किया? A. A. Yeah. Why was the Bombay. Varney Sandbank an integral part of Matthew Favor's plan? Bombay. Bombay, na? It's not A, it's B, Bombay. Okay, second one. By the word dike in paragraph 3, the author means A. C. B. Bombay. Bharat. um, it should be option D. एक second. Option D होना चाहिए, Delhi. So dike usually used to be, ये तो बाद में cities में common हुआ. पहले तो dike was in ऐसे places जहाँ पे proper transport, मतलब proper base road नहीं हुआ करता था. It used to be an uneven plain. तो उसके ऊपर एक और टू क्रिएट अ वे फॉर द व्हीकल्स टू गो, ऐसा क्रिएट किया, बनाया उन लोगों ने. उसको वो लोग डाइक बुलाते थे. इट कैन बी अ रेज्ड कॉजवे, फ्लोटिंग बोट, ब्रिज ऑन बोट्स. ये हो सकता है, लेकिन ये ज्योग्राफिकली हम डाइक के लिए नहीं बोलते हैं. तो अब पार्ट ब्रिज एंड अ पार्ट टनल, तो मतलब वो इट्स अ वे अबव समथिंग, बट इट्स ऑल्सो एनक्लोज्ड, तो वो टनल की तरह होता है. ठीक है. 13th, Delhi. दिल्ली. 14, Delhi. दिल्ली. 15, C. सी. Passage 4, 15, sorry, 16. What type of passage is this? B. Descriptive. Descriptive. 17. Tone of the passage. A. A. 18. C. C. 19. A. A. 20. D. A. 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 It will be A. Ma'am, can you please explain the 17th one? 17th. Tone of the passage. तुम्हें किस पे कंफ्यूजन है? असर्टिव में कंफ्यूजन है? नहीं मतलब ए, जो ए ऑप्शन है उसका मतलब क्या है? लॉडेटरी. लॉडेटरी मतलब व्हेन यू प्रेज समबडी, किसी की Okay. तारीफ करने के लिए यूज होता है. And what is the difference between assertive and laudatory? Assertive is just simply putting the info. You are positive about something. That's it. Okay, fine. Yeah. Okay. Now we are done with this. Now we are going to start discussing the homework analogy जो हमने homework मैंने दिया था. क्या क्या होमवर्क दिया था मैंने इसमें? Exercise 3. 2 and 3. ओके. तो एक्सरसाइज 2 बहुत इजी है. हम 3 पहले डिस्कस कर लेते, तो जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है. फर्स्ट वन, अपोस्टेट रिलीजन. अच्छा समर्थ, डू यू हैव योर वोकैबुलरी टेक्स्ट बुक? Yes, ma'am.
बी रेडी विद दैट. हम उसमें चैप्टर नंबर 12 एनालॉजी डिस्कस कर रहे हैं. दिस वाज होमवर्क इन द प्रीवियस क्लास. एक्सरसाइज 1 हम क्लास में कर चुके थे. 2 and 3 आई गिव इन होमवर्क. ओपन करो फटाफट. ओके मैम. Okay. Apostate religion. A person who gives up or abandons their religion. And deserter, a person who gives up on their duties. सब छोड़ छाड़ के साइड पे. ठीक है. Second one, bird aviary. C. C, pigsty. Jeer, derision. मैम ये वाला Reprimand, मैम ये वाला नहीं. censure. मैम पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 112 है मेरा. तुम्हारा आगे एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है. बट मैम इसमें एनालॉजीज में तो वर्ड्स फाइंड करना, आप डेफिनेशन बता रहे हो मतलब. क्या? एनालॉजी है ना चैप्टर, हाँ. तो उसमें एनालॉजी में तो ऑप्शन दिए और उसमें से चूज करना है. आप डेफिनेशन कौन से वर्ड की बता रहे हो? मैं डेफिनेशन अपने मन से बता रही हूँ. बुक में नहीं लिखा है. आई नो द मीनिंग. आई एम एक्सप्लेनिंग. अच्छा ओके. हाँ. पेज मिला तुम्हें? एक्सरसाइज मिली तुम्हें? यस मैम, वो तो मैं लिखी. ठीक है. थर्ड वन. क्या चूज किया है? एवीएम. D. हाँ. डी. दिल्ली. हाँ. फोर्थ, स्वॉर्म इंसेक्ट. C. सी, थ्रॉन्ग पीपल पर्सन. ठीक है. फिफ्थ वन, A. B. इरिसिबल, प्रोवोक. ए, क्रेडुलस, कन्विंस्ड. हाँ. सिक्स्थ, बॉम्बे. बॉम्बे. सेवेंथ, दिल्ली. दिल्ली. एट्थ, बॉम्बे. बॉम्बे. ओके. समर्थ, ये सारे हो चुके हैं इनके होमवर्क में. एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग द आंसर्स. सो यू कैन जस्ट टिक द आंसर्स दैट वी आर डिस्कसिंग. फिर बाद में तुम मीनिंग देख के यू कैन फिगर आउट कि यही सही है कि नहीं. और जो बाकी के नहीं टिक किए हैं, यू कैन ऑल्सो फिगर आउट कि वो वाले क्यों रॉन्ग है. ठीक है. ओके मैम. एट्थ वन, बॉम्बे. C. सी. नाइन्थ, बॉम्बे. बॉम्बे. टेंथ, दिल्ली. दिल्ली. तो नाइन. तुम्हारा 10th क्वेश्चन कौन सा है? डिस्कम्पोज. डिस्कम्पोज. बैक्टीरिया डिस्कम्पोज. दैट इज योर 10th वन. एक्टिविटी. विच क्वेश्चन? एक सेकेंड. हमने 8th वाला जो किया दैट वाज बैक्टीरिया डिस्कम्पोजिशन. No. देन No, ma'am. It is graduate diploma. ग्रेजुएट डिप्लोमा वाज योर 8th वन. Yes. ठीक है. उसका ऑप्शन बी है, बॉम्बे. फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? Plain and pure. प्लेन ऑस्टियर. Yes. ठीक है. प्लेन ऑस्टियर का क्या है? इट्स अगेन बॉम्बे. क्लीन, स्टेराइल. फिर उसके बाद कौन सा है? Quantity and discomfort. हाँ, उसमें से टी हटा दो. इट्स इक्वानिमिटी. डिस्कम्पोज इसका है ऑप्शन दिल्ली. इक्विलिब्रियम अनबैलेंस. ठीक है. दीज आर एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड्स.
नेक्स्ट कौन सा है तुम्हारा? रिडल्ड होल्स, इसका है दिल्ली। ठीक है। Yes. उसके बाद डिफेंस बैस्टियन, Yes. क्या आंसर इसका? Storage arsenal. हाँ, स्टोरेज आर्सेनल। रिलैप्स, कॉन्वेलेसेंस, Recidivism. दीज आर अगेन एंटोनिम्स। ठीक है। सो इसका डिसोनेंस यूफनी। नहीं नहीं, मैंने सी ऑप्शन बोला, सॉरी, इट्स डी। इट्स दिल्ली 16th। वो सॉरी, नंबर छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा? वोल्ट थेफ्ट। Chant speak. Chant speak. टेंस। Chant. एक एक CHANT. Chant. CHANT, चैंट। ये मेरे में तो नहीं है। No, I don't have this word. Okay, what are the options? What is the other word combination में क्या है? Speak. अरे पूरा वर्ड बोलो ना। Chant speak. चैंट थीफ। Speak. 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 SPEAK, अच्छा स्पीक, ओके, चैंट स्पीक, ओके। ओके, आई डोंट हैव दैट क्वेश्चन मेरे में। व्हाट आर द ऑप्शंस? Ma'am, answer is march walk. ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे में? Incumbent office. तुम लोग कौन सा ये वाली वोकैबलरी बुक निकाली ना? LR तो नहीं निकाला ना? No. तो ये इतने अलग क्वेश्चंस क्यों है मेरे में? वी आर डूइंग एक्सरसाइज 3। एक काम करते हैं, वील स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा? H hold. ओके, चैंट स्पीक इज मेरे में, इट इज ऑन क्वेश्चन नंबर 39। और उसका आंसर तुम लोगों ने क्या चूज किया? मार्च वॉक। Yes. Yeah, but हाँ, ठीक है। only 38 questions. अच्छा, ओके, तो ओके, समझ गई। ठीक है, इट्स ऑलरेडी 54। होमवर्क आरसी जितने भी बचे हुए हैं वो सारे होमवर्क में करने हैं। एक्सरसाइज 1 में से एक पैसेज बाकी है। एक्सरसाइज 2 पूरा हो चुका है। एक्सरसाइज 3 अभी तक हमने चालू नहीं किया है ना? आई थिंक एक पैसेज किया था छोटा सा। और उसके अलावा एक्सरसाइज 3 में पैसेज 2 ऑनवर्ड्स सारे होमवर्क में खत्म कर दो। इन शॉर्ट, आरसी चैप्टर में से जितने भी बचे हुए पैसेजेस हैं, जितने भी एक्सरसाइजेस हैं, वो होमवर्क में खत्म करना है। ठीक है। और ईडियम्स में हमने क्या मतलब, एक्सरसाइज 1 2 3 क्या बाकी था हमारा? ये सब कुछ हो चुका है। एक्सरसाइज 1 पूरा हो चुका है आई थिंक। 75 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में, वो पूरा तुम्हारा हो गया है कि बाकी है? मैम हो गया है। हो गया है। ठीक है। डिड वी डिस्कस दैट? डिस्कस करना बाकी है शायद। मैम done. Discuss. डिस्कस भी हो गया है। Yes. ठीक है। एक्सरसाइज 2 हमारा कितना हुआ है? Start नहीं हुआ. पूरा बाकी है। Yes. तो वो होमवर्क में ले लेना। ये दो चीजें। होमवर्क फिर ऐसा मत बोलना कि नहीं बोला था।
assumptions मैंने दिया था होमवर्क में, आई क्लियरली रिमेम्बर। तो आज का होमवर्क क्या है? Idioms and phrases exercise 2, RC all the remaining exercises. Is that clear? ठीक है। समर्थ, समझ में आया होमवर्क? हाँ मैम। ठीक है, चलो, गुड बाय।